The Mother, page 43. I had hoped to write shortly, but I have not been able to do so. Therefore, for the moment, since I have promised you this letter in the morning, I can only repeat on the other matter that I have not said that you and in any degree or the sadhaks generally were the cause of the mother's illness. To another who wrote something of the kind from the same personal standpoint, I replied that the mother's illness was due to a strife with universal forces, which far overpassed the scope of any individual or group of individuals. What I wrote about the strain thrown on the mother by the physical contacts was in connection with her resumption of work, and it concerns the conditions under which the work can best be done, so that these forces may not in future have the advantage. Conditions have been particularly arduous in the past owing to the perhaps inevitable development of things, for which I do not hold anyone responsible. Now that the sadhana has come down to the most material plane on which blows can still be given by the adverse forces, it is necessary to make a change, which can best be done by a change in the inner attitude of the sadhaks. For that alone now can make, until the decisive descent of the supramental light and force, the external conditions easier. But of this I cannot write at the tail end of a letter. I really don't know, my dear X, why you read into what I have written such extravagant things. ये read भी हो सकता है, why you read into what I have written such extravagant things, which I certainly never intended to be there. व्यक्ति जो है उसमें से ऐसी चीजें पढ़ रहा है जो श्री अरविंद इंटेंड नहीं कर रहे. I was trying to explain in one letter why physically the mother could not see anyone until she was strong enough. Why should you deduce from it a principle intended to govern her action for all the future? कि अब तो वही माँ दोबारा देखेगी नहीं लोगों को. I did not at all mean that you were henceforth to be confounded in the mass and never see the mother in private. कि अब तो तेरे को सो कॉल्ड बालकनी दर्शन या जब एक साथ ही सारों को देखेंगे, अब तो मैं माँ के बिना कैसे रहूंगा. ये सारी चीजें निष्कर्ष व्यक्ति निकाल रहा है. I have not, I think, anywhere insisted on a silent, expressionless love. कोट अनकोट में इसलिए क्योंकि इसने लेटर में ये लिखा होगा बस अब तो हम उनसे जो प्रेम है वो डायरेक्टली तो एक्सप्रेस कर नहीं सकेंगे. माँ को मैं पर्सनली फूल दूं, माँ को ये एक्सप्रेशन करूं, वो तो अब कर नहीं सकते. और इससे फिर बुन के पता नहीं क्या क्या रात को उसके बातें उठती होंगी या जो भी हर व्यक्ति की. एंड आई कैनॉट इवन रिमेम्बर हैविंग यूज्ड द फ्रेज. मेरे को नहीं लगता मैंने साइलेंट एक्सप्रेशनलेस लव. On the contrary, I thought I had made it clear first that divine love and psychic love both needed a complete expression. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. And that vital and physical love were their necessary complements and were both a part of that complete expression. At any rate, if that was not clear in my letter, I want to make it clear now. अगर ऐसा है कि पिछले लेटर में मेरे ये बात क्लियर नहीं थी, तो अब मैं तेरे को साफ साफ कह रहा हूं. As also that physical darshan etc. are quite legitimate means of expression of the psychic love etc. and a fortiori of the complete love which embraces all the parts of the nature. Therefore, you were never asked to stop seeing the mother and to give up all personal private contact with her. ऐसी कोई नहीं है कि तेरे को ये सारी चीज को गिव अप करना है.
राहुल प्रयास कर रहा है उसको इन करो, एडमिट मैं तो कर रहा हूँ, वो हो नहीं पा रहा। इसको हाँ राहुल को एडमिट करना है। ये आगे चलते हैं। Therefore, you were never asked to stop seeing the mother and to give up all personal private contact with her. On the contrary, when from some misunderstanding you made the proposal, both the mother and myself strongly objected and said it would be a wrong movement. कौन सा? Give up all personal private contact. जी मैं तो छोड़ ही देता हूँ, अब तो वहां बालकनी दर्शन होगी, उसमें बस माँ मेरे को नजर आएंगी। अब ये तो हो गया, इस जीवन का तो सारा हो गया। आप सोचिए उससे एसोसिएटेड क्या क्या फीलिंग्स व्यक्ति की आई होगी। How then can you imagine that I wanted you to do anything of the kind? Anything of the kind मतलब उसने जो जो चीजें लिखी होंगी उसके साथ associated, जो मैं कह रहा हूं अभी। As for killing the vital, that would be in absolute contradiction to the whole principle of the sadhana. या तो इसने मन में सोच लिया होगा कि अब तो वाइटल को बिल्कुल किल कर दो, या श्री अरबिंदो का इसने इंटरप्रेट किया होगा कि आपने ये कहा है कि भी वाइटल को किल कर दो। एनी हाउ जो भी है, तो ये कह रहे हैं ये तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रडिक्शन है whole principle of the sadhana and would never dream of asking anybody to do such a thing. ये श्री अरबिंदो पे आक्षेप लगा रहा है, आपने ये इंसिस्ट किया है। We have always said that the vital was absolutely indispensable to any realization, and without it nothing, neither the divine nor anything else, could be established in life. All that I ventured to suggest was that the vital movements which lead to trouble and suffering and disturbance should be eliminated or transformed as soon as possible. And even this I would not have stressed in your case if you had not had these violent fits of misery and despondency and what seemed to me unnecessary suffering. You can surely understand that I do not like to see you suffer. तेरे को निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए कि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि तू सफर करे। क्यों कहनी पड़ रही है ये बातें, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए आप। Knowing from long experience that it is the cravings and imaginations of the lower vital consciousness that cause men needlessly to torture themselves. और किस नाम से करते हैं वो? unnecessarily. Wanted you to get free from the cause. It was not the joy of seeing and talking with the mother that I wanted you to suppress. ये क्या इंटरप्रिटेशन कर रहा है श्री अरबिंदो का कि आपने माँ को देखने और उनके साथ बातचीत करने का जो जॉय है उसको सप्रेस, उसको दबा दे उस जॉय को। बट दिस contrary element in you that makes you think she does not love you, इस एलिमेंट को दबाने की बात थी जो तेरे अंदर ये है कि माँ मेरे से प्रेम नहीं करती। वहां मौजूद है, माँ मौजूद है। श्री अरबिंदो आपको पत्र लिख रहे हैं, और क्या चाहिए? does not want to see you or to smile on you, prefers others to yourself, etc etc। पता नहीं क्या क्या उसने लिखा होगा। दूसरे तो माता जी को अच्छे लगते हैं, उनकी तरफ तो वो मुस्कुराती हैं, मेरे को वो देखना नहीं चाहती। However, I will not insist. I will wait for these disturbances to pass away from you in the due course of the yoga as the inner being develops and takes charge of the lower vital nature. Finally, I will call your attention to what I have said very plainly, that you in no degree, इसके अंदर underline करके, कि तू बिल्कुल जरा भी कारण नहीं है, contributed to bring about the mother's illness. Why then persist in thinking that you have done so or may do it, कि तूने ये illness, तेरा तू इसका कारण है या तू हो सकता है। As for my dark hints about the necessity of a radical change in the sadhana, I spoke in fact of a needed change in the inner attitude of the sadhaks. It was not a reference to you, but to much that had been going wrong within the atmosphere.
You yourself speak of certain persons shaping funnily before the eyes of all, especially during the mother's illness. There is nothing unreasonable in our wanting to make the inner mistakes to cease, which cause such funny shapings to be possible. There is nothing in that touches you or need alarm you. I have not yet said anything about the mother's illness. ये इसमें है about your dream. I think I have already intimated you that you could accept it as true. तो क्या कह रहे हैं? Mother's illness, because to do so would have needed a long consideration of what those who are at the center of a work like this have to be. इस तरीके का जैसा काम हमने हाथ में लिया है उसके केंद्र में कोई व्यक्ति हो, तो ये फिर से आप समझिए क्या कह रहे हैं. I have not yet said anything about the mother's illness, because to do so would have needed a long consideration of what those who are at the center of a work like this have to be, what they have to take upon themselves of human or terrestrial nature and its limitations. इस तरीके का जब आप काम करते हो तो आपको किन चीजों के प्रति खुले रहना पड़ता है, ऐसी चीजें आती ही हैं, and how much they have to bear of the difficulties of the transformation. अपनी प्रकृति की भी हैं, आपके इर्द गिर्द जो हैं उनकी. ये इक्वेशन बहुत बड़ी पजल है, भगवान जाने किसकी किससे सोल्व हो रही है. इसलिए बेस्ट एटीट्यूड इसके अंदर, आप कोई मेंटल एटीट्यूड तो इसका ले नहीं सकते, क्योंकि प्रक्रिया इतनी ज्यादा बिहाइंड द वेल है, इतनी ओकल्ट है कि आप मानसिक रूप से तो सोचोगे ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं. प्रक्रिया बहुत ज्यादा ओकल्ट है. इसका तो एकमात्र तरीका है माँ के प्रति खुले रहना. साइकिक अगर एटीट्यूड रख सको तो रखना, तो उससे जो आप परिस्थितियों को बेस्ट यील्ड करने के लिए जो कर सकते हो वही, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसका. All that is not only difficult in itself for the mind to understand, but difficult for me to write in such a way as to bring it home to those who have not our consciousness or our experience. I suppose it has to be written, but I have not yet found the necessary form or the necessary leisure. कि किस तरीके से मैं लोगों को बताऊं, वो फॉर्म न तो अभी तक मेरे को मिला है, या नेसेसरी लेजर न उतना मेरे को समय मिला कि मैं खुल के ये सारी चीज बताऊं कि हमारे जैसे व्यक्ति जो ऐसे प्रयास के केंद्र में हैं, उनको इस ट्रांसफॉर्मेशन के काम के लिए किन कंडीशंस को, किन डिफिकल्टीज को बेयर करना पड़ता है, किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है हमको, वो बताने का न तो मेरे को नेसेसरी फॉर्म मिल पाया है, न नेसेसरी टाइम मिल पाया है. आप एक सिनेरियो समझ रहे हैं ना देविका जी, क्या चीज इसमें से निकल के आ रही है. श्री अरबिंदो और माँ के बारे में हमने जो पिक्चर मानसिक रूप से गढ़ रखी है, वैसी कोई चीज वहां थी नहीं, बिल्कुल वैसी चीज नहीं थी. इससे मैच्योरिटी आती है ह्यूमन नेचर को लेके, बहुत मैच्योरिटी आती है ये सारे लेटर्स पढ़ के. और उस फ्रेमवर्क में यदि नहीं हो तो इसका करें क्या, ये बात नहीं समझ में आती. ये पत्र तो एकदम आपके जैसे कोई रेवलेशन के जैसे ही है. यार ये बोल क्या रहा है, अभी तो ये समझ पाना ही. अच्छा ये बात तो अब आप तो इसको मना कर नहीं सकते. श्री अरबिंदो उत्तर दे रहे हैं इसके, माँ के विषय में दे रहे हैं. इसीलिए जब मैं कहता हूं यार आप कौन सी माँ के संपर्क में आते हो ये पता नहीं. जब अपन ह्यूमन नेचर की, वाइटल की और की बातें करते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा उसके अंदर टची हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है. पर देखो प्रकृति कैसे सामने निकल के एकदम साफ साफ आ रही है. क्यों देविका जी, ये साफ है ना? आप तो मतलब इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, साफ है. अब ये जो कह रहा है वो तो ह्यूमन नेचर जो कह सकती है वो सारी खराब से खराब बातें हैं. बेचारा देखो क्या क्या कह रहा है वो. ये तो रिटर्न है, इसको तो रिफ्यूट किया ही नहीं जा सकता. तो आगे चलते हैं. देयर विल बी, देयर विल ऑलवेज बी डाउट्स. ये लेटर खत्म हो गया, दूसरा आ गया. आप सारे लेटर्स का टेक्सचर देखिए, इसमें सारों में लगभग के अंदर
आप अगर ये देखेंगे लेटर्स की गिनती लिख लो, इस गिनती इस क्राइटेरिया के इतने लेटर्स हैं, इसके इतने हैं। जस्ट आप एक बार मतलब अपनी स्टडी के लिए सपोज पहले 100 पेजों में ये क्राइटेरिया के हैं, आपको ये नजर आएगा ये तो डिमांड ही डिमांड कर रहे हैं, शिकायत ही शिकायत कर रहे हैं। आप अगर क्राइटेरिया सेट करें सपोज 50 पेजों के क्राइटेरिया की ये लेटर्स इस तरीके के हैं, तो आप ये पाएंगे ह्यूमन नेचर ने महर्षि अरबिंदो को स्पेयर किया नहीं, उनको छोड़ा नहीं, और वो सो कॉल्ड उनके भक्त हैं। बातें देखो ना आप क्या आ रही है इनके अंदर। ये सारी चीज जानकारी होने से अब जीवन में आप कैसे अपने आप गाइड करोगे वो फिर बाद में ये अराइज होंगी, इसको आपको मीट करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को मीट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब मैं कहता हूं कई चीज तो वो इन सारे बैकग्राउंड्स के ऊपर होती है, और ये सारे बैकग्राउंड आपको पता होने चाहिए। There will always be doubts, upsettings and confusion of the physical mind and vital. फिजिकल माइंड में सदा ही डाउट होंगे, अपसेटिंग्स होंगी, छोटी सी चीज से अपसेट हो जाएगा वो, एंड कंफ्यूजन माइंड और वाइटल में। सो लॉन्ग एज द वाइटल अप्रोचेज द मदर फ्रॉम द रॉन्ग स्टैंड पॉइंट, तो माँ की क्रिया से डाउट रहेंगे, अपसेटिंग्स रहेंगी, कंफ्यूजन्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इंसिस्ट ऑन जजिंग हर बाई हर रेस्पॉन्स टू इट्स डिमांड्स, आपकी वाइटल और फिजिकल की क्या डिमांड रखती है माता जी से, माइंड और वाइटल। फिजिकल माइंड, माइंड प्रॉपर नहीं, फिजिकल माइंड। फिजिकल माइंड कौन सा होता है इसके अंदर आप ये देख लो, इसमें मैनिफेस्टो के अंदर फिजिकल माइंड की अपनी मांगे हैं, तो वो अगर रॉन्ग स्टैंड पॉइंट से माँ से अगर वो मांगे रखता है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इंसिस्ट ऑन जजिंग हर बाई हर रेस्पॉन्स टू इट्स डिमांड्स, माँ ठीक कब होंगी, जब मेरी जो मांग होगी माँ से उसकी पूर्ति होगी तो वो ठीक है। उस पे इंसिस्ट कर रहा है व्यक्ति ऑन जजिंग हर, माँ को जज करने पे, और वो जजमेंट किसके ऊपर आएगा, आपकी उससे डिमांड क्या है, हर रेस्पॉन्स टू इट्स डिमांड्स एंड आइडियाज ऑफ व्हाट शी ऑट टू गिव इट। अब मेरे को ये बताइए, हाँ माँ उसको भी कैटर कर रही हैं, ये थोड़ी है कि वो तो आपके हर पार्ट को जितना आवश्यक है, क्योंकि माँ जानती है बच्चा है, ग्रो कर रहा है। अब वाइटल है तो है, वाइटल कहीं छोड़ थोड़ी आया, पर जितनी आवश्यकता है आपके डेवलपमेंट के लिए, मान लो जितनी जिस जिस पार्ट को जो जरूरत है उसकी तो व्यवस्था करी जा सकती है, पर आप सोचिए सारे अगर ये डिमांड करें ये कैसे करी जा सकती है। नॉट टू इम्पोज वंस माइंड और वाइटल विल ऑन द डिवाइन, अपनी माइंड और वाइटल विल माँ के ऊपर या भगवान के ऊपर इम्पोज नहीं करना, बट टू रिसीव द डिवाइन्स विल एंड फॉलो इट इज द ट्रू एटीट्यूड ऑफ साधना। Not to say this is my right, want, claim, need, requirement. Why do I not get it? ये देखो आप माँ से ये, but to give oneself, to surrender, to receive with joy whatever the divine gives, not grieving or revolting, is the right way. Then what one receives will be the right thing for one. All this you know very well. ये सारी बातें तू बहुत अच्छे से जानता है. Why do you constantly allow your outer vital to forget it and drag you back towards the old wrong attitude? मतलब ये जानकारी भी आपको कोई बहुत विशेष एक्चुअल जब समस्याएं अराइज होंगी तो बस यही कहने के लिए है कि देख तेरे को तो इस चीज का पता है फिर भी तू ऐसा काम कर रहा है, तू तो ये सारी चीजें जानता है। तो आप सोचते हो कि जानकारी से व्यक्ति के फर्क पड़ जाता है, माँ मौजूद हैं, श्री अरबिंदो मौजूद हैं, व्यक्ति खूब अच्छे से जानता है ये चीजें, वो बड़ा मैच्योर आदमी है, मूर्ख नहीं है, समझदार आदमी। उसके बावजूद इस मार्ग से जो निकलने के अंदर जो इसके उबाल रहेंगे वो आपको फेस करने पड़ेंगे। पर ये अच्छा है, आप अपनी साइकोलॉजी की गांठों को सुलझा रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर ये अराइज हो रही है तो। आपने अपने बीइंग की जो समस्या है उसको एक्चुअल में हाथ में लिया है
ये लेटर्स को अदरवाइज मत लीजिए। ये मतलब इसको क्या क्या एटीट्यूड हमारे हो सकते हैं, तो इसमें ये है, ये शिकायत उसकी अंतरात्मा की नहीं है, ये शिकायत है उसके फिजिकल की, फिजिकल माइंड की, वाइटल की, इन सब की है, ये होंगी। इससे पहले आप कभी चैलेंज में नहीं आओगे। आपने श्री अरबिंदो के लेटर्स पढ़ लिए, सावित्री पढ़ ली, ये पढ़ लिया, सब आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो चैलेंज में आएंगी ही नहीं। भाई इससे ये बात तो साफ साफ निकल के आ रही है। इसलिए वो व्यक्ति जो शिकायतें या इसमें जो भी शिकायतें हैं, इसकी अंतरात्मा की नहीं है। ये शिकायतें आपके बाहरी नेचर की आएंगी और वो प्योरिफिकेशन की प्रोसेस में आएंगी ही। तो अच्छा रहे कि जितनी जो है सो है, न तो इससे डरो कि पता नहीं मेरी प्रकृति कैसे रिएक्ट करेगी। एक्चुअल में व्यक्ति पढ़ के पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहते हैं उसके, नेगेटिव या पॉजिटिव। राइट एटीट्यूड है, जो है सो है, पर मार्ग पे चलने पे ही ये गांठें खुलेंगी और आप पहली बार इनको टैकल करने की स्थिति में आएंगे। उससे पहले अपन ने लोग देखे हैं जिन्होंने अच्छा पीछे उनका बैकग्राउंड रहा है, पढ़ा है, माँ से प्रेम भी है, सारी बातें हैं। अरे पर आपने यात्रा के बारे में पढ़ा है, से जो एक्चुअल कंडीशंस यात्रा की होंगी वो तो उस समय होंगी। आपने बहुत लोगों के ट्रेवलॉग पढ़े हैं कि मैं माउंट एवरेस्ट पे गया, पर आप जब जाओगे और उसमें जो चीजें अराइज होंगी, उसमें आपने क्या पढ़ा था वो कोई विशेष सहायता नहीं देने वाला। आपको वहां ठंड लगनी लगेगी, वो तो पहली बार लगेगी। पढ़ने से कोई उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। तो व्यक्ति क्या सोचता है, मैं तो शुरू से माँ के ही संपर्क में हूँ, मैंने तो माँ की पुस्तकें ही पढ़ी उसमें, और एक्चुअल ये जीवन अपना के हो सकता है कोई चीजें आपको वो जानकारियां हेल्प करें, पर हेल्प से ज्यादा बाधक बन जाएंगी। क्योंकि आप फ्रेम करके बैठे होते हो, हर जना कोई भी वो सर्टेन तरीके से फ्रेम करता है, जबकि लाइफ उस तरीके की नहीं है। लाइफ तो एकदम फ्रेश तरीके से चलती है। तो अगर आप क्लिंग करते हो कि मैंने पहले ये पढ़ा था, मैंने ये जाना था, वो हेल्प करे करे नहीं करे, तो ज्यादातर केसेस में तो नहीं करेगा। ये तो अनुभव करके ही पार करना पड़ेगा इसको। और जितनी जल्दी पदार्पण करो, उतना जल्दी ही इससे फिर बाद में ये गांठें आपकी खुलेगी। अभी तो ये लगता है देखो कैसा व्यक्ति है, माँ श्री अरबिंदो को कैसे कर रहे हैं ये, तुरंत आपके ये कि हम तो नहीं करते ये हम ऐसे कैसे करते माँ श्री अरबिंदो को। अब ये तो देखो एक विचार करने की सी बात है, अब ये क्या करते क्या नहीं करते, अभी तो इसका कोई प्रमाण तो हो नहीं सकता। इसमें से जो चीज निकाल के हम अपने लाभ के लिए काम में ले सकते हैं उतनी ले सकते हैं, पर बहुत ज्यादा रिवीलिंग है इसमें से, आप पूरे जगत के अर्थ निकाल सकते हो। क्यों देविका जी, क्या समझ में आता है? देखिए आप ये कितने जबरदस्त हैं ये, यूं तो बहुत रेवलेटरी हैं ये। हाँ जी। प्रकृति की गांठें पहली बार साधना करने पे ये उठती हैं, उससे पहले हाँ जी हम तो साधना ही कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, ये बातों से नहीं होता है, ये बातों से हो नहीं सकता। वो ऐसा लगता है कि हमें तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, है ही नहीं हमारे हाँ ये अंदर, लोगों के हाँ अंदर प्रॉब्लम्स है। हाँ, इसमें मैं कह रहा हूँ ना, सारे लेटर्स का आप टेक्सचर देखोगे, लोगों के रहता है हम लेटर्स पढ़ते हैं दम अदर के। अगर आप भावना रख के इनको पढ़ो तो अगर, तो आप थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आ सकते हो कि यार ये क्या बातें हुई। डिपेंड करता किस एटीट्यूड से कि अरे ये उसके साइकिक की शिकायतें नहीं है, ये आप समझो पहले तो। ये आपके डीपर नेचर की शिकायत नहीं है, पर आपके डीपर नेचर के ऊपर तो ये कवर कर देती है आपकी जो लोअर नेचर है ना आपकी। अच्छा आपको लगता है मैं तो समझ रही हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ। अरे श्री अरबिंदो को लिख रहा है तो वो संभाल के तो लिख ही रहा होगा। आपको अगर ये पता होगी मेरा लेटर मैं तो श्री अरबिंदो को लिख रहा हूँ, ऐसे तो है नहीं कि वो भोलेपने में लिख रहा था, कॉन्शियसली लिख रहा था श्री अरबिंदो को। आप इन सारी बातों को समझो, पर इससे एक तो ये कि इसकी साइकिक की बात नहीं है ये, तो ये चीजें तो अराइज होंगी और इनको आपको मार्ग में मीट करना पड़ेगा, इनको मीट जरूर करना पड़ेगा। आपकी लोअर नेचर है वो मां श्री अरविंद के पे कीचड़ फेंकेगी, वो फेंकेगी। अब ये डिसेंसी हमारे अंदर हुई तो मार्ग पे पता चलेगा कि वो डिसेंट है या नहीं है, लोअर नेचर क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अभी क्या पता।
अभी कुछ नहीं पता। नहीं तो व्यक्ति बड़ा अच्छा बढ़िया बढ़िया, मैं तो सारे टाइम खाली भगवान के ही एटमॉस्फेयर में रहता हूँ, मैं तो ये बातें हैं। अगर ये बात अभी उघड़ के नहीं आई लोअर नेचर, इसका मतलब वो चैलेंज में आई ही नहीं अभी तक। वो अभी आई नहीं, व्यक्ति अपने उसमें रहता है और उसमें रहता है। जो जानकार है वो हंसता है उसको देख के, अरे ये अभी आया नहीं अभी इस मार्ग के ऊपर। तो इसलिए तो एज फॉर द, जरूरी तो नहीं है सारे एक ही प्रोसेस से जाए। कि जैसे इस व्यक्ति है, उसकी अगर लोअर नेचर कीचड़ उछाल रही है, तो जो पर्सन इस मार्ग पे जा रहा है उसके साथ होगा ही ऐसा। ये तो हर एक का अपना अपना स्वभाव है, जरूरी तो नहीं कि हाँ अब हर एक बिल्कुल। की लोअर नेचर कीचड़ उछाले। हाँ पर प्योरिफिकेशन की प्रोसेस ऐसी है कि आपको, हाँ उसको आपके बैलेंस ऑफ बीइंग किस तरीके का है उसके ऊपर है। आप अगर दिलीप मोरॉय को देखो तो नेचर उनको जैसी मिली वैसी मिली, बहुत ज्यादा शिकायत, बहुत ज्यादा शिकायत। पर बीइंग का बैलेंस इस तरीके का है कि एकदम साइकिक एटीट्यूड। वही उनकी शिष्या है, उनको बीइंग का बैलेंस तो वैसे तो ठीक मिला। बहुत ओकल्ट हैं, सारी चीजें हैं, बहुत दूसरी चीजें भी हैं। इसलिए बड़ी विचित्रता है, ये कोई हम निर्णय नहीं दे रहे ये सही है ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो कह रहा हूं प्योरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। इवन आपके शरीर के अंदर हीट और कोल्ड और ये जनरेट होना शुरू हो जाएगा। कुछ बुखार आनी हो सकती है, शुरू हो, पेट में दर्द शुरू हो, ये हो वो, अगर आप एक्चुअल साधना कर रहे हो तो आपके बीइंग का प्योरिफिकेशन, और उसके अंदर आपको धैर्य ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अब आपके जबरदस्त पेट में दर्द हो गया, चेकअप करवा रहे हो, कुछ नहीं आया तो भी चिंता है, और कुछ आ गया आप कह दो मैं तो ऑपरेट करवाऊं, मैं तो ये करूं। साधना की बात कर रहा हूं मैं। शरीर में भी ये चीजें शुरू हो जाएंगी, प्राण में तो शुरू हो ही जाएंगी, पता नहीं क्या क्या उठ के आएंगी चीजें। और उसमें फिर क्या है कि व्यक्ति केंद्र में आ जाता है, इसने मेरे साथ ये नहीं किया। अब देखो आपकी डिमांड देखो ना इनकी, माँ से कर रहे हो, इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि ये तो सामने कोई व्यक्ति उस तरीके से है। तो प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया में आप नहीं जानते कि कौन सा भाग किस तरीके से रिएक्ट करेगा। मेन चीज है आपकी साइकिक चेतना, उसके अंदर बने रहना। वो अगर डीप कमिटमेंट नहीं हो तो वो स्टिक कर नहीं पाएगी। जब ये बवाल उठेंगे तो आपको लेजिटिमेट लगेंगे, माइंड से उचित लगेंगे वो बवाल, अगर साइकिक चेतना ही उसको अलग से कर पाएगी, डिसर्न कर पाएगी कि ये तो लोअर नेचर है, ये हायर नेचर है, ये मेरी साइकिक नेचर है। अगर आपके सामने गुरु नहीं हो और खाली पुस्तक को आप गाइड बना रहे हो तो ये कैसे होगा। आप अपने सब्जेक्टिव तरीके से ही कोशिश करोगे भाई, आप जितना बेस्ट कर पाओगे वैसे ही कोशिश करोगे। उसी के अंदर तो सारा दोष है, बदमाश तो उसी में छिपा हुआ है। इसलिए गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो भी सीरियस व्यक्ति है, और उसको मिल भी जाता है। जीवन की सार्थकता यही है देविका जी की, एक कोई शब्द के अंदर जिसमें आप कन्फाइड कर सको, जिसमें विश्वास कर सको, और उसको बोझा दे दो अपना। इससे यात्रा कर पाओगे। और जो अराइज हो सो हो। फिर कहते ना मैंने एक बार निर्णय लिया और मैं अंत तक जाऊंगी, और आप जरूर अंत तक जाओगे, इसमें फर्क ही नहीं है। ये इसका रहस्य है, इसको अपना पाना और इसको फॉलो कर पाना। अपनाना मुश्किल है, फॉलो तो फिर बाद के अंदर अगर थोड़ा भी करते हो तो भी उसके आपको परिणाम तो मिलेंगे। पर हम तो चाहते हैं अंत तक जाए व्यक्ति, इसको स्वीकार करके। तो अपने सामने जो मुद्दा है बड़ा क्लियर है। As for the mother drawing back from the old course, routine, etc. of her action with regard to the sadhaks, it was a sheer necessity of the work and the sadhana. Everything had got into a wrong groove, was full of mixed movements and a mistaken attitude, and consequently things were going on in the same Rajso Tamsik round without any chance of issue, like a squirrel in a cage. यहाँ वही एक रूटीन राजसिक तामसिक तरीके का राउंड चल रहा था, इसलिए वो एक रॉन्ग ग्रुप था। ये तब की बात है जब माँ हैं, श्री अरविंदो हैं,
सारे समय आप तो ये सोचते हो वैसी चेतना, ये चेतना, ये बातें हैं, आपको अभी पता नहीं है, आपने खाली एक पिक्चर बना रखी है, जबकि ये देखो ये कह रहे हैं एक ग्रूव में फंस गए थे, राजसो तामसिक ग्रूव के अंदर, उसको तोड़ना जरूरी था। The mother's illness was an emphatic warning that this could not be allowed. माँ की जो इलनेस है वो इस चीज का संकेत है, एक वार्निंग है कि अब इस चीज को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कि वो एक रूटीन पकड़ लिया आपने, राजसो तामसिक, और हम सब करते हैं ये काम, एक तामसिक रूटीन पकड़ लेते हैं, उसको यदि कोई तोड़ने की, अभी क्या है, जो जो खाली स्क्रीन के उस पार हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप ये सुनते हो और उसको अपने तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करते हो। पर अगर आप एक दूसरे अनुशासन के अंदर आ जाते हो, जहां आपकी प्रकृति कहती है मतलब मेरे वाले को तो नहीं, बार बार आपका सेल्फ विल है वो चैलेंज में आ जाती है, आप दूसरे तरीके से करते हो, तो धीरे 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 बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, और फिर बाद में आपकी साइकिक एटीट्यूड तो कहीं और ही चला जाता है, दूसरी और चीज आ जाती है, वो उठा के आपको ले जाती हैं। कोई जरूरी नहीं कि जीवन में दोबारा पता भी चले आपके साथ क्या हुआ। मैंने ये पाया, ये वापस रिटर्निंग, कोई बहुत ही पावरफुल सोल हो तो रिटर्निंग होती है, अदरवाइज तो वो आपसे बात ही नहीं करता, वो बात ही नहीं करता। आप अखंड इस मार्ग में लगे रहो देविका जी, बहुत कम लोग मिलते हैं, नहीं तो व्यक्ति उन बहानों से जाता है और उसकी प्रकृति दोबारा उसको मुंह मोड़ के ही देखने नहीं देती, एक ऐसा आपके साथ हो जाता है। एक ट्रेजेडी है ये, सोल की ट्रेजेडी है। आप सोचिए कि अगर ये व्यक्ति चला जाता है, साइकिक तो वहां आश्रम में उसको मौका नहीं दे रहा, बाहर तो लोअर नेचर उसको मौका देगी क्या, कवरिंग नहीं कर लेगी। आश्रम में हो तब तक आपके साथ संघर्ष कर रही है, पर दूसरी फोर्स है वो आपको सेफ्टी भी प्रदान कर रही है। ये एक जबरदस्त है, नेगेटिव पावर्स आपके पीछे लगी हुई हैं अगर आप सीरियस हो तो, और वो कवर करने की कोशिश कर रही हैं। जब आश्रम में कोशिश कर रही हैं, बाहर जाके आप क्या सोचते हो, वो करने देंगी? मैं तो मेरे तरीके से साधना कर लूंगा, पहले मैं कर रहा था। आपके लिए कोई रिटर्निंग नहीं है, या तो बहुत सोच समझ के आओ और इस निर्णय के साथ आओ, आप काफी मैच्योर हो कि मैं अंत तक जाऊंगा। उससे पहले न कोई योग है न कोई साधना है, आप अपने स्तर पे जो कर रहे हो सो कर रहे हो। प्रकृति की गांठें नहीं उठेंगी, प्रकृति की गांठें सुलझने के लिए जितनी आएंगी वो उतनी आएंगी जितनी उस अवस्था में आ सकती हैं, पर एक्चुअल जो गांठें ये व्यक्ति ये जो कह रहा है वो कभी अराइज ही नहीं होंगी आपके, तो प्योरिफिकेशन भी नहीं होगा, जो होगा उतना होगा, बस उतना ही होगा कि उतना साहस मैं अपने आप को देने का कर नहीं पा रहा, तो जो साहस करेगा उसका भी उतना ही होगा, जो नहीं साहस करेगा उसका भी उतना ही होगा। ये तो कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये राउंड यहाँ चल नहीं सकता, इसको तोड़ना जरूरी है। ए न्यू बेसिस ऑफ एक्शन एंड रिलेशंस हैज टू बी बिल्ट अप। जो पीछे चल रही थी ना माँ से संपर्क, तुम्हारा संबंध, वो राजसो तामसिक था, मेंटल भी नहीं था, in which no further sanction will ever seem to be given to the past mistaken movements of the sadhaks which were standing in the way of the descent of the truth। अब इसके फिर दिक्कत हो जाएगी कि साधकों का जो एटीट्यूड है वो तो सत्य के अवतरण के मार्ग के अंदर खड़ा है, इनटू द फिजिकल मटेरियल नेचर। द बेसिस कैन नॉट बी बिल्ट इन ए डे, और एक दिन में ये चीज तैयार नहीं की जा सकती, बट द मदर हैड टू स्टैंड बैक, अदरवाइज टू बिल्ड इट ऑल वुड बी इम्पॉसिबल। साधकों के एटीट्यूड के कारण जो ऊपर से अवतरण हो रहा है वो नहीं हो सकता, इसलिए माँ को स्टेप बैक करना पड़ा, स्टैंड बैक करना पड़ा, नहीं तो इस चीज का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका तो कोई, अब इसका तो समझ में ही नहीं आती ये कह क्या रहे हैं। ये तो हम क्योंकि पढ़ रहे हैं इसलिए एक दूरी के ऊपर हैं, आप वहां अपना सर्वस्व दे के छोड़ छाड़ के बैठे हो, और आपके पास ये पत्र आ जाए कि अवतरण आपके कारण नहीं हो रहा आश्रम में, कैसा लगे ये?
विषादकों के कारण तो आप भी आ गए उसके अंदर। उसमें आपको तो स्पेयर किया नहीं कि तेरे को छोड़ के और दूसरे, एक जनरल एटमॉस्फियर बता दिया कि रेजिस्टेंस का एटमॉस्फियर है, इसलिए अच्छा काम नहीं हो सकता है यहाँ पे। यही कह रहे हैं श्री अरविंद कि ऊपर से जो अवतरण है वो नहीं हो सकता तुम लोगों के कारण, ये कह रहे हैं। इसलिए माँ को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ा। If it is the same part of the vital that was on the right side and has now turned against the mother, the explanation is very obvious. It gave its addition formerly because it thought that by its addition, it could make her satisfy its desires, finding its desires not indulged, it turns against her. क्या मतलब हुआ देविका जी इसका? पीछे से पढ़ना पड़ेगा। If it is the same part of the vital that was on the right side and has now turned against the mother, the explanation is very obvious. जो पहले तो वो कह रहे हैं कि जो एक ये सेम पार्ट है वाइटल का जो कि पहले माँ के साइड पे था, अब वो माँ के अगेंस्ट हो गया है, has now turned against the mother. उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? It gives its adhesion. adhesion तो जोड़ना होता है, adhesive मतलब उसका उनसे संबद्धता, माँ से एडिशन मतलब मैं माँ से जुड़ा हुआ हूँ। जो जुड़ा हुआ। It gave its adhesion formally because it thought that by its adhesion it could make her satisfy its desires, finding its desires not indulged, it turns against her. वो माँ से जुड़ा इसलिए था कि उसको लगा कि माँ से जुड़ने की वजह से उसकी जो अपनी डिजायर्स है वो पूरी हो जाएंगी, बट जब वो डिजायर्स पूरी नहीं हुई तो फिर वो माँ के अगेंस्ट हो गया, जो वाइटल है। That is the usual vital movement in ordinary man and in ordinary life, and it has no true place in the योग। तो ये क्या मूवमेंट है कि वाइटल सोचती है कि मेरी बातें पूरी होंगी, ये वाली कौन सी बात है? वाइटल की यही बात है, जैसे वाइटल किसके अंदर रस लेता है, इम्पोर्टेंस, जैसे हम कर सकते हैं कि माँ जो है वो मुझे ज्यादा बुलाए, मेरी तरफ ज्यादा दिखे, इस टाइप की। सामान्य जी नहीं, पर ये तो साधक हो गया वो तो। हाँ, बट साधक में भी यही चीजें सब उठ रही थी। सामान्य जीवन की कह रहे हैं ये। वो साधक होने के बाद उसकी जो दूसरी प्रकृति है, लोअर नेचर है, वो तो एक बात हो गई। साधक के लोअर नेचर चली नहीं जाती, पर वो अब एक इक्वेशन के अंदर है जिसको वो प्योरीफाई कर रहा है, सोल्व कर रहा है। साधक एक यात्रा के अंदर है। ऑर्डिनरी व्यक्ति है, उसने तो अभी यात्रा अपनाई नहीं योग की। यूं तो खैर पूरी प्रकृति योग है सिंथेसिस के हिसाब से, पर इसने तो अपना ही नहीं। तो वैसे क्या वाइटल की ये रहती होंगी, जैसे आप कह रहे हो इम्पोर्टेंस, ये भी हो सकता है। और और क्या क्या भाव हो सकते हैं? एक्सपेक्टेशंस है, पोजेसिवनेस है, ये सब वाइटल का है। वाइटल का और भी है, जैसे जेलेसी है, कंपटीशन है, ये सब वाइटल के अंदर है। वाइटल में है कि सुपरियोरिटी है कि माँ मैंने ये काम करा है, माँ मेरे को एक्नॉलेजमेंट करे। मेरी डिजायर्स जो है माँ ने इंडल्ज नहीं करी, मतलब उसको कोई तवज्जो नहीं दी, तो उसके टर्न अगेंस्ट हो गया। तो ये तो सारों में ही है, तो सारे क्या अगेंस्ट हैं उनके? ये तो अब डिपेंड करता है कि आपका क्या अंदर से प्रोसीजर चल रहा है, नहीं, पर क्या प्योर थोड़ी है आपकी कोई। प्योर आपकी तो नहीं। प्योर तो होता ही नहीं ना। हाँ जी, बट ये डिपेंड करेगा कि क्या उस समय आपका साइकिक कहाँ इंटरफेयर करेगा, ये तो मुश्किल पहले। है, बहुत मुश्किल है इसको जानना। और ये कैसे अराइज होगा ये भी हमको नहीं पता, न इसको ध्यान देना, मतलब इसको कोई एंटिसिपेट करें या ये करें, ये करना भी नहीं चाहिए। राइट मूवमेंट है खाली साइकिक के ऊपर अपने को केंद्रित रखना, हमेशा, हर स्थिति में। ये गड़बड़ी करें तो तुरंत फिर से राइट उसके अंदर आ जाओ, फिर कोई बहाने से आपको दूर लेके जाएं, फिर तुरंत इसमें इसमें आ जाओ। ये जीवन की सफलता है।
नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, एक तो संपर्क जो तोड़ना है ना, राइट, जो आपको जहां से कोई चीज मिलती है उससे संपर्क तोड़ना सबसे पहला काम करता है वो। आप तो हमारी भी यात्रा में देख रहे हो, ये समझदारी है। आप तो संपर्क तोड़ो मत, ठीक है फेजेज आ रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी है भाई। गलत मैं बोल रहा हूं या समझ रहे हो या जो भी है वो अराइज हुआ, पर उसका बेस्ट तरीका है कि आप तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और वाइटल पहले क्या करता है, कल से नहीं आएंगे हम तो। यही सबसे पहला निर्णय ये आता है कि हम कल से नहीं आएंगे। और वो ऐसे बहानों से सामने उन चीजों को देता है जो आपको लेजिटिमेट लगते हैं। अगर आपको वो उचित नहीं लगते तो आप वो बहाने देते ही नहीं। एक डीपर चेतना आपकी होती है, वो कहते हैं यार क्या बकवास कर रहा है, पर ये करना बहुत बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए, और बहुत क्लैरिटी, बहुत ये चाहिए। क्योंकि वाइटल उस टाइम सामने आ जाता है और वो कहता है मैं तो नहीं जाऊंगा, इन्होंने पंकज जी ने ये बात कही, हम कल से नहीं जाएंगे। यार तेरे को पंकज से मतलब है, तू तो श्री अरविंद को पढ़ रहा है। और आज तेरे को ये बात कैसे समझ में आई, तू सैकड़ों सेशन से साथ में है। वो उसको वो लॉजिक नहीं समझ में आता, वो वाली उसके समझ में आती है। वो कहता है मैं आज से नहीं आऊंगा और मैं कल से नहीं करूंगा। तो माँ ने कहा ऐसे निर्णय कभी ना करो, स्टेप बैक स्टेप बैक स्टेप बैक, और डीपर चेतना में चले जाओ और वहां से निर्णय करो। पर उस समय नहीं कर पाता, उस समय बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब देखो जीवन की एक बिल्कुल अलग पिक्चर निकल के आ रही है, ऐसा कोई बताता ही नहीं। ये भी जीवन है। तो ये देखो आगे क्या कह रहे हैं, दैट इज द यूजुअल वाइटल मूवमेंट इन ऑर्डिनरी मैन एंड इन ऑर्डिनरी लाइफ एंड इट हैज नो ट्रू प्लेस इन योग। It was just the introduction of this attitude into yoga by the sadhaks and its persistence, which has at last made it necessary for the mother to draw back as she has done. What you have to do is to get these lower parts to understand. तेरे को इन lower parts को समझाना पड़ेगा that they exist not for themselves but for the divine, and to give their addition without blame or irrepentancy और subterfuge। इसका मतलब है कि कोई चीज छिपाना, सबटरफ्यूज, छिपा लेते हैं हम, इतनी इतनी चीजें छिपाते हैं। अच्छा ये चीज अगर आपने दृष्टि कल्टीवेट करी है, लंबे समय से आप साधना में हो, तो आपको स्पष्ट दिखती है देविका जी चेहरे के ऊपर, आपको आभास हो जाता है। तो ये मूवमेंट्स अब इतने हम सारे परिचित हो गए, मैं सारी चीज कहता नहीं, पर ये आभास तो पहले से ही हो जाता है, हाँ ये मूवमेंट चल रहा है, ये बात है, ये बात है। अगर वो व्यक्ति विश्वास कर पाए तो उसको बता सकते हैं, अदरवाइज तो बिल्कुल प्लेन होता है ये, इसमें कोई छिपी छिपी बात नहीं होती। पर अब ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ जाता है ये, क्योंकि अगर आप एनी लेंथ ऑफ टाइम इस चीज में होगे तो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी कि अरे ये तो ऐसे है, सबटरफ्यूज, छिपी रहती है चीजें। इट इज द होल इशू एट द प्रेजेंट मोमेंट इन द साधना, फॉर इट इज ओनली इफ दिस इज डन दैट द फिजिकल कॉन्शियसनेस कैन चेंज एंड बिकम फिट फॉर द डिसेंट। नहीं तो डिसेंट नहीं हो सकता। अदरवाइज देर विल ऑलवेज बी दीज अप्स एंड डाउन्स इन सम पार्ट ऑफ द बीइंग, एटलीस्ट कम से कम कोई पार्ट तो, और कोई पार्ट में होती रहेगी तो आपकी तो गड़बड़ है। भाई आपके किसी भी रूम के अंदर तोड़फोड़ चल रही है तो शांति से तो कहीं भी नहीं बैठ सकते घर के ऊपर। अगर मेरे कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम, मेरी बिल्डिंग में तोड़फोड़ चल रही है, तो मैं शांति से ध्यान कैसे कर लूंगा किसी भी और कक्ष में? आवाज तो वैसे ही आनी है, डिपेंड करता है बस वो कैसी है, बाकी तो आप शांति से तो नहीं बैठ सकते। तो ये अप्स एंड डाउन्स चलेंगे अगर ये रहेगी। अब इससे आपको बीइंग का बैलेंस कैसा है? ठीक है, शरीर में है तो भी परेशान होने हो, वाइटल में है तो भी ज्यादा परेशान होने हो, माइंड में है तो जैसे होने हो सो ही होने हो। रिलीफ तो कोई से में भी नहीं आना। भाई बीमारी तो बीमारी है। अब आप कहो कि पेट में दर्द है तब तो मैं ध्यान कर सकता हूँ, सिर में दर्द है तो नहीं कर सकता। आप कहे यार दर्द तो दर्द ही है, सिर दर्द है तो भी दर्द है, पेट दर्द है तो भी दर्द है। आपको कोई चॉइस दी जाए तो कहते यार दर्द हो ही क्यों, मतलब ये कोई चॉइस है क्या? बताओ कौन सा वाला दर्द स्वीकार करोगे? कोई सा ही नहीं करेंगे। आप ये थोड़ी कहोगे चलो यहाँ दे दो मेरे को, आप ये क्यों दे दो भाई? तो ये आपके बीइंग में कहीं भी इम्प्योरिटी रहेगी, ये तांडव करेगी, ये आपको नहीं जाने देगी। आपका जो भी बीइंग का बैलेंस है उसको आपको टैकल करना पड़ेगा, उसको सुलझाना पड़ेगा। सुलझाने के लिए केवल साइकिक चेतना,
और साइकिक चेतना क्या कहती? एकमात्र माँ के चरण, बस। उससे पहले ये अराइज नहीं होगी। तो ये इक्वेशन बड़ी सिंपल है, इसलिए एक तो इस ये पढ़ने से हम क्या ले सकते हैं इससे, कि हमारी नेचर से परेशान न हो, न तो ज्यादा इलेटेड हो कि मेरे को कोई बहुत ही बढ़िया मिल गई, न ये कि मेरे को बहुत खराब मिल गई। करने का मुद्दा जो है स्पष्ट, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें और उसमें लगें। गिर जाएं फिर खड़े हो जाएं, धूल अपनी झड़काएं फिर चल दें। थोड़ा आराम करना आराम कर लो, थोड़ा ये रुकना है रुक जाओ, थोड़ा पढ़ना, जो भी है वो करते रहो, मार्ग ना छोड़ो। मेन चीज है ये, चलते रहो पर उसको अपनाओ। वहम पालने से थोड़ी कोई, तो ये अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, डिले, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। दिस इज द ओनली ट्रू बेसिस फॉर फिक्सिटी इन द ट्रू कॉन्शियसनेस। ये साइकिक वाली बात है, एंड फॉर ए स्मूथ कोर्स इन द साधना। फिर दूसरा लेटर, फॉर द रेस्ट इट इज नॉट ए फैक्ट दैट द मदर इज रिटायरिंग मोर एंड मोर, or that she has any intention of going inside entirely like me। ये एक व्यक्ति के, अब ये सोचो अलग अलग के भी हो सकते हैं, एक के भी हो सकते हैं, पर ये जिस तरीके के पत्र हैं अलग अलग लोगों के हैं। ये कह रहा है अभी माँ तो अब आप जैसे बिल्कुल एंटायरली इनसाइड चले गए, वैसे ही माँ भी चली जाएगी तो हम किसके भरोसे होंगे। इसमें कंसर्न किसी का भी माँ से है नहीं, न साधना से है, न माँ से है, न किसी कार्य से मतलब है। इनको तो खाली खुद से मतलब है। ये हमारी प्रकृति है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, खाली मैं अपनी भक्ति माँ को कैसे दूंगा, इसको भक्ति से मतलब नहीं है। मेरे को उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मैं कैसे प्राप्त करूंगा, मेरी साधना कैसे होगी। मैं इन पत्रों में और कोई कंसर्न नहीं है। ये उत्तर आपको स्पष्ट ये चीज दिखा रहे हैं, इनमें आप हजार चीजें रीड कर सकते हो इन पत्रों के माध्यम से। इसको तो लग रहा है मैं डिवोटेड हूं, मैं माँ के बिना रह नहीं सकता, मैं तो कंप्लीटली सरेंडर्ड हूं, पता नहीं क्या क्या हूं। पर उसका एक्चुअल में आप इसको ठंडे दिमाग से देखो तो उसका कंसंट्रेशन खाली खुद के ऊपर है कि आप भीतर चले जाओगे, हमारा क्या होगा। यही है कंसर्न, और दूसरा कंसर्न क्या है इसमें? नहीं तो ये उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं। ये उसके ये चिंता थोड़ी कि मैं माँ का काम कैसे कर पाऊंगा, उससे तो रोका नहीं है आपको। ये थोड़ी कह रहे हैं कि अगर आप मेरे को मिलोगे नहीं तो आपका काम कैसे कर पाऊंगा, कार्य से संबंधित जो चीजें हैं। अगर वो कहते ठीक है आपके पत्र हम ले लेंगे, मिलेंगे नहीं, चलेगी क्या ये बात? एक नहीं स्वीकार करें, कोई मतलब नहीं किसी को माँ के कार्य से। बातें हैं ये खाली, अभी केवल बातें हैं, क्योंकि आपकी चेतना जानती है कि आप फोटो में ही संपर्क कर सकते हो, भावना में कर सकते हो, या जिसमें भी आप कर सकते हो। पर वो रियलिटी हो और आपको वो गाइड करें, है नहीं। ये वास्तविक स्थिति है। योर रिमार्क अबाउट द प्रिविलेज्ड फ्यू आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू मी। क्या मतलब हुआ इस लाइन का देविका जी? कि कि जो माँ है वो सिर्फ थोड़ों को ही मिलेगी। योर रिमार्क्स अबाउट द प्रिविलेज्ड फ्यू आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल to me. We are not confiding in a few at the expense of others or telling them what is happening while keeping silent to you. For the rest, it is not a fact that mother is retiring more and more or that she has any intention of going inside entirely like me. ये श्री अरविंद कह रहे हैं ना कि जो है मदर इज रिटायरिंग मोर एंड मोर, और वो कह रहे हैं कि जो साधक है उसने ये बोला होगा कि भाई माँ सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों को ही मिलेगी। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि जो तुम्हारे ये रिमार्क्स हैं अबाउट द प्रिविलेज फ्यू आर इनकॉम्प्रिहेंसिव, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वी आर समझ में नॉट, नहीं आ रहे मेरे को, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मेरे नहीं समझ बैठते, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ जी, कि हम सिर्फ थोड़े ही लोगों को नहीं कन्फाइड कर रहे हैं या उन्हीं से ही हम वार्तालाप करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स और टेलिंग देम व्हाट इज हैपनिंग व्हाइल कीपिंग साइलेंट टू यू, कि कन्फाइड आपको कन्फाइड का मतलब ये हुआ कि हम सारों को सारी बात नहीं बता रहे, कुछ को तो हम बात बताते हैं। कॉन्फिडेंट बोलते हो ना आप, कन्फाइड करना कोई चीज के हाँ अंदर। जी, हाँ जी,
कि मैंने देविका जी में तो विश्वास किया, उनको तो फोन करके मैंने बता दिया, और मैंने विवेक को नहीं बताया, उसको नहीं बताया। तो कहते मैं तो आपके पास था, मेरे को तो आपने बताया नहीं, फोन करके वहां देविका जी को आप बता रहे हो। आप समझ रहे हो इसका क्या अर्थ निकलता है? हाँ जी। प्रिविलेज्ड फ्यू जो आपके अटेंडेंट्स हैं, जो आपके कमरे को अरेंज करेंगे, आपको फिजिकली सर्व करेंगे, जो आपसे मिल सकते हैं, उनको तो आप साधना की भी बातें बता दोगे। कन्फाइड और किस चीज में करोगे? कोई आश्रम के बैंक बैलेंस की डिटेल्स थोड़ी बता रहे हैं कोई। कन्फाइड किस चीज के अंदर की गहरी चीजें तो उनको तो आप बता दोगे। और क्या बताना है? अंतरंग बातें कि उनको तो आप बताओगे, हमको नहीं बताओगे। ये कैसी डिमांड है? आप या आप देख सकते हो कि सामान्य व्यक्ति जो डिमांड करता है उस हैं? वाइटलिस्टिक है, जेलसी, कंपटीशन, इनसिक्योरिटी। है ना सारी की सारी। और किस नाम से? मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका ये हूं वो हूं। अब ये पत्र देख लो, आपको क्या बता रहे हैं ये साधना की, ये एक्चुअल चीजें हैं। मैं इसी आधार पे सारा वर्णन करता रहा हूं। व्यक्ति को लगता है यार ये आप बार बार क्या टोकते रहते हो, ये है, आप आ जाओ तो ये चीज अराइज हो जाएगी। योर रिमार्क्स अबाउट, तो ये तो हो गया। I have, I think, written more to you than to anybody else about these matters, and the mother has not been confiding to anybody anything in that field which has been held back from you. तेरे को तो खूब खूब हम बताते रहे हैं, और इस फील्ड में जिसके बारे में तू कह रहा है कि माँ दूसरों को बताती है, तो तेरे को बताने में होल्ड बैक नहीं किया है माँ ने। This about the privileged few is an old complaint of yours and it has no foundation. दिलीप कुमार रॉय हो सकते हैं ये। If anybody claims to have the special confidence of the mother, he is making an egoistic claim which is not justifiable. क्योंकि इनको कृष्ण प्रेम ने कहा था कि तेरे गुरु की फिजिकल सेवा कर, पांव दबाया कर, उनकी फिजिकल सेवा कर तेरे गुरु की। इससे बढ़िया साधना हो ही नहीं सकती। गुरु की सेवा कर, सेवा कर, सेवा कर, और व्यक्ति करना ही नहीं चाहता, अपने तरीके से जीवन चलाना चाहता है, अपने तरीके से। वो अगर हो सके तो दिलीप फिजिकल सेवा कर गुरु की। तब वो लिखते थे हमारे गुरु तो मिलते ही नहीं है, फिर वो उनके फिर हिचकियां शुरू हो जाती थी, और फिर श्री अरबिंदो को लिखते थे कि हम तो गुरु यूं ही हैं, हम तो यूं ही हैं, हम यही हैं, वी पुअर मॉर्टल्स, हम धरती के लोग, हम ये हम वो, और फिर पता नहीं क्या क्या। और श्री अरबिंदो फिर बाद में उनको जो अपने दूसरे वॉल्यूम में ही है, लविंग लेटर ऑफ श्री अरबिंदो टू दिलीप, एक टाइटल है। श्री अरविंद कह रहे हैं हमारा तेरे ऊपर क्या क्लेम नहीं बनता, क्या तू बेटा है मेरा? अरे ये यहां तक लिया है आप खींच के। चलो वो तो लविंग लेटर लिख रहे हैं श्री अरविंद तो, पर उनको यहां तक लिया है आप, ये कहने को इन्होंने मजबूर कर दिया। ये बातें जिनको आप ये करो ये परात्पर हैं, ये माँ ट्रांसेंडेंटल माँ है, ये यूनिवर्सल है, ये महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये वो, ये बढ़िया है, सारी बातें बढ़िया है, पर जब निम्न प्रकृति ऊपर आती है उसको एक सरोकार नहीं है इन बातों से। ये पत्र उसके मैं कह रहा हूँ खूब खूब प्रमाण है, साफ साफ। अब आप इंडिपेंडेंटली, क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसमें मैंने ये भी बता दिया, ये किसी को भी समझ, बार बार समझ जाओ कि उसकी साइकिक की शिकायत नहीं है ये। इसलिए सामान्य व्यक्ति जो शिकायत करता है, ये व्यक्ति शिकायत कर रहा है, टेक्सचर एक जैसा लगेगा, पर वो लोअर भाग के कारण है, जेलेसी है, ग्रीड है, लस्ट है, क्लेम्स हैं, एनवी है, डिमांड्स हैं, ये सारी लोअर नेचर की है, पर उसके प्योरिफिकेशन की प्रोसेस में है। सामान्य व्यक्ति बोलता है उसके, वो वाइटल का वैसे ही गुलाम है। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो आपको मूवमेंट तो ऑर्डिनरी ह्यूमन मेंटेलिटी के या वाइटलिटी के, फिजिकलिटी के लगेंगे, पर है नहीं ये। बस इतना फर्क आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए पत्र पढ़ते समय, ये हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो इससे ये भी आएगा कि अगर आप सीरियसली साधना कर रहे हो तो ये चीज तो आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि आप इसके ऊपर केंद्रित हो, केंद्रित तो साइकिक के ऊपर हो। ये आए तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, पर आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप किस चीज की मांग कर रहे हो। रोजी बेड नहीं मिलने वाला, यहाँ तो तकलीफ आने वाली है अगर मार्ग तय कर रहे हो तो।
If anybody claims to have special confidence of the mother, he is making an egoistic demand which is not justifiable. Your real point seems to be about the mother's not taking up the soup and its accompaniments again. माँ जो है अब सूप सेरेमनी अब नहीं करेंगी और उसके साथ जो जो चीजें होती है वो नहीं करेगी. I have told you already why she was compelled by the experience of her illness to stand back from the old routine. वो राजसो तामसिक तरीके की चीज चल रही थी, उसको तोड़ना जरूरी है. वो चीज अब दोबारा स्वीकार नहीं की जा सकती. Which had become for most of the sadhaks a sort of semi-ecclesiastical routine and nothing more. Ecclesiastical जो आपके चर्च में जाके आप कई जो ये चीजें करते हो, अनुष्ठान करते हो, वो ही चीज बन जाती है, उसमें फ्रेशनेस खत्म हो जाती है. आपको तो ये बड़े ऊंची ऊंची टर्म्स में बताया जाता है, सूप सेरेमनी होती थी, हम ये करते थे, वो करते थे. इनकी पुस्तकों में भी अलग अलग साधकों की पुस्तकों में वर्णन मिलता है. पर अब ये लो श्री अरबिंदो के लेखनी से आप पढ़ लो कि वो एक खाली एक एक्लीजियास्टिकल सेमी एक्लीजियास्टिकल एक रूटीन बन गया था. अब आपके वहम मिट जाने चाहिए इससे तो कि पता नहीं क्या क्या होता था और वो ऐसे करते थे, ये सब वहम है. ये टोटल काट दो. जो लाइफ जैसी आप हो वैसी वहां कोई बड़े बड़े मंसूबे न बांध के जाओ, वो वैसा नजर नहीं आता. Routine and nothing more. It was because of the mistaken attitude of the sadhaks which had brought about an atmosphere full of movements contrary to the yoga and likely to lead to disaster, as it had already begun to do. To resume the soup on the old footing, पुराने ढर्रे के ऊपर यदि सूप सेरेमनी को दोबारा रिज्यूम करना would be to bring back the old conditions and end in a repetition. और उसका परिणाम क्या होगा, फिर से वही चीजें होनी शुरू हो जाएगी ऑफ द सेम राउंड ऑफ रॉन्ग मूवमेंट्स एंड द सेम रिजल्ट्स. तो ये वहम आज तक जिनके है कि साहब वो सेरेमनी होती थी, ये होती थी, वो होती थी, पर उसके परिणाम ये श्री अरविंद ने कहा उसके हैप्पी परिणाम नहीं थे, इसलिए हम उसको रिज्यूम नहीं करेंगे. पुस्तकों में तो उसको बड़े फ्लावरी टर्म्स के ऊपर कहा जाता है, वो है नहीं. आप लोग भी शायद जानते हैं इसके विषय में. आपको इस कि पहले सूप माँ बनाती थी, फिर वो आता था, माँ हर गिलास में से थोड़ा थोड़ा सिप लेती थी, वो फिर बाद में साधक उसमें से फिर वो लेते थे. तो इसके बारे में बड़े फ्लावरी वर्णन है, मैंने जगह जगह पढ़े हैं, पर उसकी सच्चाई है ये. अब जिसने सारा साहित्य माँ का नहीं पढ़ा, अब वो तो वहम वहम में कोई एक सुविधाजनक तरीके से एक लाइन यहाँ पढ़ ली, एक वहां पढ़ ली, एक वहां पढ़ ली, और अपनी एक ऐसी रोजी सी पिक्चर गढ़ लेता है. सब आप लोगों के रोजी एक पिक्चर दिमाग में घुस रही है, क्योंकि अभी पूरा ये तो अब पहली बार लग रहा है यार ये कह क्या रहे हैं, डिप्रेशन आ जाता है ये पढ़ पढ़ के. इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये तो साइकिक की जो है बात, वो नहीं है, ये तो उसका लोअर नेचर है, वो कह रहा है. इसलिए सामान्य व्यक्ति और इसके अंदर फर्क है. मेरे को आपको बार बार इसलिए ये कहना पड़ रहा है, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी देखो तो यार ये क्या है, ये फिर हम तो अच्छे माँ के पास जाके कीचड़ फेंके क्यों करें हम ये काम. The mother has been slowly and carefully taking steps to renew on another footing her control of things after her illness, but she can take no step which will allow the old dark movements, जो dark movements थे, देखो आप शब्द देखो, to return, movements of some of which I think you yourself were beginning to take notice. The next step is for the sadhaks themselves to take. They must make it possible by their change of attitude, by their resolution to rise on the lower vital and physical plane into the true consciousness, for a union with the mother on that plane in the right way and with the right result to become possible. More I cannot say just now, but I fully intend to be more explicit hereafter. बाद में मैं तेरे को बताऊंगा. So for as I can without special reference to individuals, for these are things personal to people's yoga that can often be spoken of only to themselves and not for others. As for your other questions, I shall consider them in another letter. It is too late tonight. It is already 3:30 AM. 3:30 मेरे को already बज चुके हैं. श्री अरबिंदो कह रहे हैं मेरे को already 3:30 बज चुके पत्र लिखते लिखते, तो अभी तो लेट हो गई. इसलिए एक जगह माँ ने कहा दे हैव असैसिनेटेड अस, उन्होंने हमको मार डाला.
आप भक्तों की ओर की बात कर रहे हो, 3:30 बजे पत्र लिख रहे हैं। आप समझते हो इसका अर्थ? फिर सुबह उठ के फिर से लिखने के लग जाएंगे और के अंदर। आंखें दे दी उन्होंने, किसके लिए? इन डिमांड्स के लिए। क्या हमने सबने एक वहम पाला हुआ है कि हमको पता नहीं लेटर्स का, ये हमारे लिए न्यूज है एक तरीके से। हमको कुछ सेंस नहीं है, कुछ भी सेंस नहीं है, बिल्कुल सेंस नहीं है। ये रियलिटी है। आई विल ओनली से that what happens is for the best, in this sense only that the end will be a divine victory in spite of all difficulties. इन पत्रों में से और 1000 चीजें निकल के आती है, पर वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा। इसमें इतनी चीजें मैं देख पा रहा हूं, इतनी बातें देख पा रहा हूं जो रिवील कर ही नहीं जा सकती। That has been and always will be my seeing, my faith and my assurance, if you are willing to accept it from me. But that does not mean that your sadness and depression are necessary to the movement. The sooner they disappear, never to recur again, the more joyously the mother and I will advance on the steep road to the summits, and the easier it will be for you to realize what you want, the complete bhakti and ananda. इससे कई कई एटीट्यूड हम ले सकते हैं। एक तो ये कि हमारी प्रकृति जो शिकायतें करती है उस पर ज्यादा ध्यान देने से फायदा नहीं, ये जानते हुए कि ये प्रकृति की शिकायतें हैं, वो आएंगी, और राइट एटीट्यूड बनाए रखें, साइकिक एटीट्यूड बने रहे जितना बना रह सकता है। बाकी इन पत्रों से स्पष्ट है, और ये तो अभी तो अपन ने शुरू किए हैं। क्यों देविका जी, कितनी चीजें रिवील कर रही है ना इसके भीतर से। ये तो और खोले हाँ तो जी, खोलते जाओ, ये तो रिवीलिंग है एकदम। हाँ मानव जी, प्रकृति की गांठें खुल रही है, और वो ऐसे व्यक्ति जो वो, और ऐसा कोई हर कोई व्यक्ति नहीं उसने समर्पण किया है भाई एक तरीके से। और जिन्होंने भी ये सूप सेरेमनी है वो है, या जिन्होंने जो पढ़ रखा है उसकी यहाँ सारी बातें, अगर आप श्री अरबिंदो के ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स हैं, उनकी एक्स्ट्रा स्टडीज है, अगर आप ये नहीं करते आपको पिक्चर का ही पता नहीं लोगों को अपने सबके पिक्चर गढ़ रखी है पहली बार। अब क्यों आप देखो देविका जी, अब ये नजर आ रहा है ना, ये यार ये तो पिक्चर ही थी, बस एक अपने गढ़ ही रखी थी, है तो नहीं। क्यों? हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। 1 मिनट दो मेरे को आप।